प्रेगनेंसी इज ब्यूटीफुल, लेकिन हर 10 में से एक प्रेग्नेंट महिला के लिए एक मुश्किल एंड रिस्की समय हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और PIH. Today let's talk about why it happens, what it means and how to stay safe in it. Namaste. I'm Dr. Ameya Kanakia, obstetrician and gynecologist and a health coach. और अगर you are looking for verified and authentic information regarding pregnancy, hit that subscribe button. I simplify women's health and pregnancy issues for you so you can enjoy your pregnancy better. Now, pregnancy-induced hypertension or PIH एक ऐसी condition है that starts after the 20th week of pregnancy, मतलब pregnancy के 5th month के बाद. अब इसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर जाता है, सिर्फ एक ही बार नहीं but at least on 2 occasions which are around 6 hours apart, जब वो प्रेग्नेंट लेडी को पहले कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, then that is termed as pregnancy induced hypertension. और अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ यूरिन में से भी प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है, निकल रहा है, which is called as protein urea, then this condition is called preeclampsia. Now why is this important? क्योंकि अगर इसको इग्नोर किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं which can be harmful for both the mother and the baby. और जैसे कि इन सम केसेस बीपी इतना बढ़ता है दैट द वुड बी मदर कैन हैव कन्वल्जन्स और फिट्स ड्यू टू इट एंड देन इट इज कॉल्ड एज एक्लैम्पशिया. नाउ फॉर द बेबी व्हाट हैपेंस इज कि बेबी का ग्रोथ हैम्पर होता है, अर्ली डिलीवरी हो सकती है, बच्चों कमज़ोर हो सकता है. नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन एक्चुअली साउंड वेरी स्कैरी, आई नो, लेकिन टुडे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेटर सो दैट यू कैन लर्न टू स्टे सेफ. Now, our human body is very amazing. When you get pregnant, the body does everything it can to help the baby grow well and healthy. पूरी priority baby होता है. Now, अब baby की growth and nourishment सबके लिए उसको जो nutrients पहुँचते हैं, oxygen पहुँचता है, energy पहुँचती है, वो सब blood में से पहुँचता है. And this is the blood that flows through the mother's arteries into the uterine arteries and वो uterus को supply करते करते placenta के through baby के पास जाता है. Now, what the body does firstly is to increase the blood that flows to the uterus and to the baby through the uterine arteries and the smaller arterioles called spiral arterioles जो उसके अंदर जाते हैं towards the placenta. अब यूट्रस को सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, the uterine arteries, they dilate, meaning they grow in diameter. Now, this ensures that the baby gets more blood supply. इसके वजह से the pregnancy can receive more and more nourishment. और PIH में क्या होता है, स्पेशली प्री एक्लैम्पशिया में क्या होता है कि ये जो चेंजेस ब्लड वेसल्स में आने चाहिए, दिस डायलेटेशन और दिस रीमॉडलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस फेल्स टू ऑकर. The blood vessels or the spiral arterioles, they remain narrow and उसमें से जाने वाला blood flow भी कम होता है. Now, to understand this, think of a tap जिसमें से पानी नहीं आ रहा है. There is some grime or slime जो उसके पाइप के अंदर डिपॉजिट हो गया है, जिसके वजह से उसका डायमीटर कम हो गया है, वो पाइप नैरो हो गया है. तो अगर उसमें से पानी नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, टैप को जोर से खोलते हैं ताकि और प्रेशर से पानी आ जाए. Now, this is exactly what the body does. The body pushes blood towards the placenta, towards the uterus with a higher force or a higher pressure, which in turn leads to high blood pressure. But this blood is still flowing at a high resistance जो उसको लगता है when it flows through the arteries. और इसके वजह से फिर भी blood supply थोड़ा सा कम हो जाता है. तो प्लेसेंटा को मिलने वाला जो खून है वो कम होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में प्लेसेंटल इश्कीमिया बोलते हैं. एंड इसके वजह से प्लेसेंटल परफ्यूजन मतलब प्लेसेंटा का ब्लड सप्लाई कम होता है. And the body's reaction to this is by releasing certain chemicals or certain inflammatory cytokines in the mother's blood circulation. And these chemicals can cause further damage. कि जैसे ही ये blood vessels blood में आते हैं, ये chemicals blood में आते हैं, वैसे ही body के organs उनको react करते हैं. And that leads to an inflammation-like condition in these organs, which we call as endothelial dysfunction. मतलब basically ये जो organs के अंदर का सबसे अंदर का जो layer रहता है, endothelium जिसको हम बोलते हैं, उसमें changes होते हैं. एंड इसके वजह से क्या होता है, और भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ये आर्टरीज और भी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है और नैरो हो जाती है. वैस्कुलर रेजिस्टेंस और भी बढ़ता है क्योंकि द ब्लड हैज़ टू ट्रैवल नाउ इन आर्टरीज विच आर मच लेसर इन डायमीटर.
अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इतना रेजिस्टेंस से ब्लड फ्लो हो रहा है, थोड़ा स्लोली फ्लो हो रहा है। सो इसके वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में से, उसके अंदर से प्लाज्मा और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड वो बाहर लीक होता है, एंड वो लीक होने से यू गेट सम काइंड ऑफ इडिमा, जो सूजन आती है। धीरे धीरे जो प्लेटलेट्स होते हैं, मतलब जो ब्लीडिंग को सील करते हैं, जब ब्लीडिंग होता है तो ये जो ब्लड कंपोनेंट्स ब्लड के होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं, एंड पूरे बॉडी में बिकॉज ऑफ दिस कोएगुलेटरी फैक्टर्स कोएगुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। आई नो ये समझने के लिए ना थोड़ा सा भारी है, डिफिकल्ट है, बट लेट अस लुक एट द प्रैक्टिकल पार्ट कि ये सब अंदर हो रहा है तो बाहर उसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मतलब व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स जो आपको दिखते हैं व्हेन अ लेडी हैज पीएच। तो एक्सटर्नली उसको हमको क्या दिखता है इसमें कि बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सो अगेन लाइक आई सेड 140/90 से ज़्यादा है ब्लड प्रेशर ऑन 2 occasions 6 hours अपार्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, जब आपको पहले कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं था। सो दैट इज वन थिंग दैट हैपेंस। सेकेंडली, यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट होता है, प्रोटीन यूरिया होता है। अगेन वाई, बिकॉज किडनी का जो एंडोथेलियम है, लाइनिंग अंदर का है, वो डैमेज हो रहा है। एंड अगर ये बहुत सीवियर होता गया तो स्लोली पेशेंट्स स्टार्ट पासिंग लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन विच पॉइंट्स टुवर्ड्स किडनी डैमेज। स्वेलिंग होता है आइदर बेसिकली इन योर लोअर लिम्स, पैरों में सूजन होता है, फिर ऑल ओवर द बॉडी भी सूजन होता है। सडन वेट गेन दिखता है बाहर हमको, यू स्टार्ट गेनिंग वेट ऑफ मोर देन हाफ और 1 kg पर वीक। लिवर में इसका प्रॉब्लम होता है, लिवर में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स सीक्रेट होते हैं उसका प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, लिवर का फंक्शन अफेक्ट होता है, लिवर में ब्लीडिंग हीमोरेज हो सकता है, एंड उसके वजह से पेट में दर्द भी हो सकता है। आँखों में इसका असर दिखता है विथ व्हाट वी कॉल एज पैपिलोइडिमा, मतलब धुंधला दिखता है, क्योंकि रेटाइना को, मतलब जो आँखों का पर्दा होता है, उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है वो भी स्पैज़म में जा रही है, सेकड़ी हो रही है। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ना ऐसे ही चालू रहा तो इट कैन प्रेजेंट आउटसाइड टू अस एज सीवियर हेडेक, कंफ्यूजन होता है, पेशेंट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड वो कहाँ है, क्या कर रही है, बिकॉज ब्रेन में भी चेंजेस हो रहे हैं। एंड नाउ द ब्रेन कैन नॉट विथस्टैंड अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर। ब्रेन का एक बैरियर रहता है टुवर्ड्स वेरी हाई प्रेशर, एंड वो अगर क्रॉस हो जाता है तो द पेशेंट कैन हैव कन्वल्जन्स या फिट्स आता है, जिसको हम एक्लैम्शिया बोलते हैं, एंड दिस कैन बी अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीआईएच। अनदर थिंग दैट हैपेंस अलोंग विद इट, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज साइंस एंड सिम्टम्स टुगेदर, उसको हम बोलते हैं हेल्प सिंड्रोम, HELLP, हेल्प सिंड्रोम, जिसमें आता है हीमोलाइसिस, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, elevated liver enzymes, EL for elevated liver enzymes and LP for low platelet count, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लीडिंग चालू हो जाता है, एंड द पेशेंट कैन स्लोली गो इनटू DIC, मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, जिसमें बॉडी में ऑल ओवर छोटे छोटे क्लॉट्स बनना चालू हो जाता है। अब ये सब हो रहा है जब माँ को, तब बेबी का क्या हो रहा है अंदर, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बेबी, बेबी को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अब द बेबी को ब्लड कम पहुंच रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच बेबी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। IUGR होता है विच इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। डिलीवरी जल्दी हो सकती है, ऐसे केस में कभी कभी लेबर पेन इधर जल्दी चालू हो जाता है, या समटाइम्स इवन वी वांट टू डिलीवर द पेशेंट अर्ली बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो पेशेंट इज गोइंग थ्रू। सो प्री मैच्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस है दैट द बेबी हैज टू फेस। बेबी की ग्रोथ स्लो होने के साथ द बेबी के आजू का जो पानी रहता है वो भी कम होता है, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामियोस। और एक रेयर बट वेरी सीरियस और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन जो होती है विच इज कॉल्ड एज एब्रप्शन और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ये होता है जब प्लेसेंटा का अटैचमेंट फ्रॉम द यूट्रस वो छूट जाता है, प्लेसेंटा के पीछे ब्लीडिंग होता है, एंड आइदर वो बाहर आता है ब्लीडिंग, व्हेन देयर इज सीवियर ब्लीडिंग जो पेशेंट को दिखता है, या तो ब्लीडिंग अंदर ही रह के बेबी को मिलने वाला ब्लड एकदम से कम हो जाता है। इसके वजह से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। Very scary things we spoke of, but when we think of all of these things or talk of all of these symptoms, एक obvious thought जो दिमाग में आता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे ये prevent हो सकता है। So stay tuned for the second part of this video where I will discuss with you कि ये सब prevent कैसे कर सकते हैं, इसके risk factors क्या हो सकते हैं, which can help you to manage your pregnancy better. Till then, share this video with someone जिसको सुन के फायदा हो सकता है।
and keep following for more.